Okay, so let us first revise what we did in the previous two classes so that we will have a upper hand in what we will study today. So in the first class, we studied that what are the elements of crime. So there are four elements of crime: human being, guilty act, mens rea, injury. I hope these 4 points are clear to every one of you. Secondly, we studied what are the different stages of crime. A crime is not spontaneous, it needs some stages. So for the purpose of investigation and for the judges to inquire into the matter in the complete way, they have segregated the crime into four stages, that is planning, preparation, attempt, and execution. As I said, that not all offenses need attempt or execution for the commission of offense. Rather, few of the offenses the person is held guilty in the stage of preparation itself, such as minting of coins, counterfeiting currencies, and all those offenses. Then, in the second class, we studied section 299. In section 299, we studied that there are three parameters over which we will put a person liable under section 299. सो बेयर एक्ट आप सब खोल लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेक्शन 299 को. So in section 299, the first element was that there was an intention to cause death. And as I said, that death is mandatory for section 299 to be applicable. Death होना ही चाहिए. So पहला जो हमारा element था, that was intention of causing death. इसमें क्या था कि देयर हैज टू बी एन इंटेंशन, वो विलिंग होना चाहिए किसी का जान लेने के लिए. The second one was the intention to cause such bodily injury as is likely to cause death. वो किसी इंसान का जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसका इंटेंशन था किसी को ऐसी बॉडीली इंजरी देने का जो कि लाइकली था कि जिसकी वजह से डेथ हो जाए, और डेथ हो भी गया. The word likely means that there is probability. It is not certainty, rather it is probability. And probability means you can say around 50% chance was there that that was inevitable. However, death हो गया. जो तीसरा हमारा एलिमेंट था, दैट वाज द नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट कॉज डेथ. यहाँ पर जो नॉलेज था, जो नाउ मैंने आपको डिफरेंस बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड नॉलेज, that whenever there is intention, it is presumed that there is knowledge of that thing. But where there is only knowledge, then intention is not there in this case. So in this case, knowledge अगर है किसी को, मतलब वो जानता है, he is sane enough to realize that what can be the consequence of that. इस चीज के लिए मैं आपको एक और बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब कोई विलिंग होता है, मतलब जब किसी की इंटेंशन होती है कुछ करने की, तो उसके पास दो चीजें होती हैं. फर्स्ट, देयर इज अ डिजायर. एंड व्हाट इज द डिजायर? द डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होगा वो डिजायर उस चीज की करता है. और सेकेंड चीज जो इंटेंशन में आता है, दैट देयर इज फोरसाइटनेस ऑफ consequences. What is foresightness? Foresightness means that वो देख सकता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. तो एक तो वो चाहता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो, और दूसरा वो देखता है कि कॉन्सिक्वेंस होगा. सो ये दो चीजें होती है जब इंटेंशन होता है. लेकिन जब नॉलेज होता है तो इन दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट मिसिंग रहता है, दैट इज डिजायर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज देयर इज नो विलिंगनेस. विलिंगनेस सिर्फ इंटेंशन में होता है. सो दैट इज वाई ओनली देयर इज फोरसाइटनेस. उसे पता होता है कि मैं ये करूंगा तो क्या हो सकता है. देयर इज फोरसाइटनेस. फोरसिएबिलिटी इज प्रेजेंट इन नॉलेज, बट in intention there is one more element that is present, that is desire of consequences. आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, that intention comprises desire of consequences and foreseeability of consequences. However, knowledge comprises only foreseeability of consequences. तो ये तो हमारा था इंटेंशन और नॉलेज में डिफरेंस. देखते सेक्शन 299 में ही जो मेंशन्ड है, इलस्ट्रेशन में हमने के ऊपर उसको लकड़ी से ढक देता है कि किसी का डेथ हो जाए, तो वहां पर वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल है अगर किसी का डेथ एक्चुअली हो जाता है.
जो दूसरा इलस्ट्रेशन हमने देखा था कि एक इंसान को पता था कि बुश के पीछे एक जो इंसान है उसे पता था कि बुश के पीछे एक इंसान है, और वो दूसरे बंदे को बोला कि तुम शूट करो, और दूसरा बंदा अगर शूट कर देता है तो इस केस में जिसने शूट किया था उसे पता नहीं था कि उस बुश के पीछे इंसान है. So in that case, the person who shot, he was not liable for, he may not be liable for offense. अब यहाँ पर may not का इसीलिए यूज किया है because it depends upon the facts and circumstances. अगर फैक्ट्स बताती है कि उसे भी पता हो सकता था, तो फिर यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज हो जाएगा? इन दैट केस वहां पर मान लीजिए कि जो शॉट कर रहा है वो जिस बंदे को शूट किया उसको पहले से जानता हो, और थोड़े समय पहले वो उससे मिला भी हो, यानी कि जहां पर वो है उसे पता है कि वो बंदा भी उसी जगह पर कहीं ना कहीं मौजूद है. एंड देयर वाज अ चांस दैट ही कुड हैव नोन दैट वो बंदा हो सकता है उस बुश के पीछे. तो वहां पर सिचुएशन चेंज हो जाएगा. तो ये जो सेक्शंस हैं और आईपीसी के, ये सिर्फ एक सेक्शन है, लेकिन ये एप्लीकेबल एविडेंस लॉ के साथ होते हैं. क्यों? क्योंकि एविडेंस लॉ में क्या क्या रेलेवेंट होता है, क्या क्या एडमिसिबल होता है कोर्ट में, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है. सिर्फ इस सेक्शन के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाई जाती है. तो हमारा जो तीसरा था इलस्ट्रेशन, उसमें जो पर्सन था ही वाज इंटेंडिंग टू किल एंड स्टील अ फाउल. अब यहाँ पर वो इंटेंशन भी था एंड एट द सेम टाइम उसको नॉलेज भी था कि वहां पर फाउल है, और उसने गोली चला दी, लेकिन बदकिस्मती से डेड का डेथ हो जाता है. वो नहीं होगा क्योंकि इंटेंशन भी नहीं था और उसे पता भी नहीं था. कैसे पता भी नहीं था? Am I audible to everyone? Please respond. Am I audible to everyone? Yes, sir, you're audible. Ananya, mute yourself. Okay, so Ananya, please, will you please mute yourself? Okay, thank you, Ananya. So, जो तीसरा illustration था, so when I'm not audible, please let me know. Okay. Okay, sir. Okay, so shall we move forward? Please mute yourself. If you have to say something, please say. Please contact with Ananya and tell her to mute because it creates a disturbance. So you can mute by Okay. yourself also. So, okay. So, am I audible to everyone now? Yeah. Yes. So, the third illustration, we were talking about the third illustration. So can I? Yep. I think she wanted to say something. Okay, so she was just unmuting herself, but she was not telling, so I thought that she don't want to ask anything. Okay, so am I audible to everyone? Please let me know. Yes, sir. Yes, so sir. that we can continue. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, so then we studied the explanation part. There were three explanations given in section 299. The first explanation talks about that if the person is already suffering from any disorder, disease, or bodily infirmity, and we have posed a bodily injury on that person and he dies because of that, it means his death became faster because of that, then in that case that will become under the culpable homicide. The second explanation talks about that if there is remedy and skillful treatment, but if that person
still dies, then it is not the bodily injury because of which he dies, rather it is, and that is not because of the remedies and skillful treatment because of which he dies. That is because of the bodily injury because of which he dies. Third explanation says that a child who is still in the womb of a mother, if he is caused death, in that case, that will not be culpable homicide. However, if a single part of the child comes out of the womb and then his death comes, in that case, that will come under the culpable homicide. So these were the three explanations along with the three illustrations. And also I explained you that now, before moving on to section 300, I would request you to please move on to section 80, 79 and section 80. So please move on to section 79 and section 80. So when you are ready, please let me know. Anyone, please let me know when you are ready. Yes, sir. Done, sir. Okay. So what do you see? What is section 79 all about? I would read it for you. Act done by a person justified or by mistake of fact, believing himself justified by law. Now I'm making you explain this statement because there can be a situation where a death happens or an act is done knowing by mistake. Okay, in that case, what can be the probable consequence of that? So will you be liable for that? So this section says that nothing is an offense which is done by any person who is justified by law. It means that it is not an offense to do if it is justified by law. If a person is justified by law. So what I mean justified by law? Justified by law means, suppose there is a police officer, so he is justified to kill a person who is running away. Probably that is called encounter. So encounter is justified if it is really an encounter. So in that case, the police officer will not be liable for the culpable homicide or murder of that person because his action is justified. The second part of it says, or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law is in good faith believes himself to be justified by law. Now, for this, I would like to give a situation. Suppose you are going somewhere and in the way you saw, अपने रास्ते में देखा कि दो लोगों में लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई इस तरीके की हो रही थी कि एक के हाथ में बंदूक थी, पिस्तौल था और दूसरे के हाथ में चाकू था. सो यहाँ पर ये जो लड़ाई थी, इसे देखकर आपने एक जिम्मेदार सिटीजन होने का फर्ज निभाया. व्हाट यू डिड दैट, क्योंकि दैट इज ऑब्वियस कि जिसके हाथ में ज्यादा खतरनाक हथियार होता है उसे ही रोका जाता है, क्योंकि पिस्तौल जो है ज्यादा खतरनाक हथियार है. तो जो बंदा जा रहा था उसने क्या किया कि जिसके हाथ में हथियार था यानी पिस्तौल था, उसे वो रोकने का कोशिश किया. ठीक है, और जब वो रोकने का कोशिश किया तो रोकने के दौरान गोली चल गई और गोली जो थी वो जो चाकू लिए खड़ा था उसे लग जाती है. अब यहाँ पर मैंने आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि अगर जैसे जो बुश वाला मैंने एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन पढ़ा था उसमें था कि एक बंदा बोलता है कि तुम गोली चलाओ और दूसरा बंदा चला देता है. सो देयर वाज अ कंट्रीब्यूशन, दो लोगों का कंट्रीब्यूशन था उस गोली को चलने में. तो यहाँ पर क्या है कि जो बंदा एक गुड फेथ में किसी की जान बचा रहा है, सोसाइटी में क्योस होने से बचा रहा है, तो क्या वो ऑफेंस किया इस सिचुएशन में? आपको क्या लगता है? No, sir. Why? Can you give me the reason, Rohit? Sir, because he was he कैसे कहें इसको? He wrongly believed that he is justified by doing this act. So if he wrongly believed, then he should not be left. He should rightly But believe himself. there was no criminal intent. But there was no intention also. तो ये section 81 के अंदर आएगा ना? Yes, there was no intention. So what does the second part says? Second part do not talks about intention. Second part talks about that he Good was mistaken by fact,
he was not mistaken by law, and whatever he did, he believed that he was doing it in good faith, and he believed that he is doing something which is justified by law. So it was his belief. वो सही था या नहीं था इसके बारे में तो बात ही नहीं किया गया है, ये तो उसका खुद का बिलीफ था कि उसने उस चीज को सही मानकर किया, और एक्चुअली में वो सही था ये तो कोर्ट में डिसाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस एंड द लॉ। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसे लॉ पता था। व्हाई? बिकॉज ही वाज नॉट मिस्टेकन बाय लॉ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। उसे पता था कि लॉ के, उसे लॉ पता था, इसलिए उसने लॉ से मिस्टेक नहीं किया, फैक्ट से मिस्टेक किया। कैसे फैक्ट से मिस्टेक किया? कि वहां पर जो बंदूक लेकर खड़ा था वो क्रिमिनल था, और जो दूसरा बंदा था वो राह पर जा रहा था। ठीक है, अब कोई अगर आपको बंदूक लेके अटैक करेगा, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर जो गलती हुई वो दोनों से नहीं हुई, वहां पर गलती हुई तो सिर्फ एक इंसान से हुई जिसने बंदूक रख रखा था। क्यों? क्योंकि बंदूक रखना ही मतलब उसके लिए एक, पहले तो आपको लाइसेंस चाहिए होता है, दूसरा चीज कि अगर आप बंदूक लेकर रास्ते में निकाल के किसी को डरा धमका रहे हैं तो आपको पता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। सो think about the knowledge part. He had the knowledge that something wrong can happen, even death is possible in that case. So he had the knowledge. So जो thirdly है 299 का thirdly यानी knowledge that is likely to cause death, वो यहाँ पर applicable हो सकता है। But again I will say there is no yes or no in a situation, there is always nuances. Nuances मतलब middle path जो होता है depending upon the circumstances and the facts. So इसीलिए आप का जो भी आंसर होगा, जो भी आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे, वो आपका आंसर इस तरीके का होना चाहिए दैट इट शुड नॉट अपीयर टू द एग्जामिनर दैट यू आर पुशिंग ऑन समथिंग। आप ऐसा आंसर देख के लगना चाहिए दैट यू हैव अ प्रॉपर रीजन ऑफ दैट देयर, बट यू हैव ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी दैट कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब हम लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन में हम क्या सोचते हैं वो लिखते हैं, तो वहां पर आप लिखिएगा। बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग कि क्या क्या हो सकता है, वहां पर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे कि हम क्या सोचते हैं, वहां हम वही लिखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंदा कंट्रीब्यूशन दिया अपना, एक्चुअली वो गुड फेथ में कर रहा था और उसे लॉ पता था कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ अनदर इंडिविजुअल। तो ये लॉ है, अगर वो उसका लाइफ नहीं बचाता तो वो एक ऐसी ड्यूटी नहीं करता जो उसे करनी चाहिए थी। सो अगेन देयर वाज ओमिशन, अगर वो उसे नहीं बचाता तो देयर वुड हैव बीन ओमिशन, और ओमिशन होने की वजह से हो सकता है कि वो भी इस चीज में फंस जाता। ठीक है, इसीलिए जो भी आपने पहले से भी आपका मूवीज में देखा होगा, वहां भी देखा होगा कि जब आप वहां खड़े थे तब गोली चलाई गई तो आपने कुछ किया क्यों नहीं, ये हमेशा पूछता है आपने क्या किया। क्योंकि अगर वो कुछ नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, हो सकता है कि वो भी उस चीज में शामिल होगा, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि दोनों बंदे एक दूसरे को जानते थे पहले से, तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाता है। ठीक है, सो ये जो 79 है ये बात करता है जस्टिफाइड एक्ट के बारे में, कि अगर आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं विच इज जस्टिफाइड तो फिर वहां पर आप ऑफेंस नहीं करते हैं। और अगर आप कोई ऐसा भी एक्ट करते हैं विच इज बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, तो वहां पर भी वो चीज जस्टिफाइड बाय लॉ है, वहां भी आपका कोई ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन देखें तो देखिए क्या लिखा है, ए सी जेड कमिट्स व्हाट हैपेंस और अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। अब देखिए जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है उसका इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको पढ़िए। ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। सो ए देखता है कि जेड जो कर रहा है, ए को लगता है कि वो मर्डर कर रहा है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, अपने बेस्ट जजमेंट में, अब ये सब्जेक्टिव हो गया है कि उसके जजमेंट में क्या हो रहा है। सो ए जो है एक्सरसाइज करता है, क्या एक्सरसाइज करता है, ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द फैक्ट। सो वो क्या करता है कि लॉ जो है हर इंसान को ये पावर देता है कि वो दूसरे इंसान के रक्षा करे। ठीक है, सो वो वही चीज कर रहा होता है गुड फेथ में। सीजेस जेड, सीज करता है जेड को, यानी जेड को पकड़ लेता है।
इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज। जेड को पुलिस के सामने, प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है? पुलिस होती है इस केस में। तो पुलिस के सामने पेश करने के लिए जेड को पकड़ लेता है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जेड जो था वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। तो यहाँ इससे क्या हम मीनिंग समझते हैं कि जेड जो भी कर रहा था उस दौरान वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा था, लेकिन ए को ये लगता है कि जेड मर्डर कर रहा है और वो जेड को पकड़ के पुलिस के सामने ले जाता है। सो यहाँ पर ए जो है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, हालांकि जेड जो था वो अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर रहा था। सो ये जो इलस्ट्रेशन है, ये समझ आया कि इसमें क्या हुआ? एनीवन? Yes, Kunal, sir. did you Yes, sir. understand? Yes, sir. Sir, Okay. could you explain the So last part बाकियों को of भी it? समझ आ गया होगा मुझे। Yes, last part means that, okay, I will explain it again. So A sees Z commit what appears to A to be a murder. A ने देखा कि Z कुछ कर रहा है, ठीक है, और A को लगा that Z is committing a murder. A, in the exercise to the best of his judgment, asserted in good faith. A जो था वो एक्सरसाइज किया इन गुड फेथ और अपने बेस्ट जजमेंट में, दैट वाज हिज सब्जेक्टिव थिंग। वो अपने सब्जेक्टिव थिंग में ये सोचा कि वो जो एक्सरसाइज कर रहा है इन गुड फेथ ऑफ द पावर, ए ने एक्सरसाइज किया क्या? पावर एक्सरसाइज किया ऑफ द पावर विच लॉ गिव्स टू ऑल पर्संस ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट। तो हर उस इंसान को जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है या सिटीजन नहीं भी है, लॉ ये पावर देता है कि वो मर्डरर्स को एप्रीहेंड करे, यानी मर्डरर्स को मर्डर करने से रोके, और वही ए सोचकर कर रहा था इन गुड फेथ। और उसने उस चीज के लिए क्या किया? उसने जेड को पकड़ लिया, सीजेस जेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज। जेड ने, ए ने जेड को पकड़ा प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने पेश करने के लिए। तो प्रॉपर अथॉरिटीज इस केस में कौन होगा? पुलिस ऑफिसर। सो जेड को पुलिस ऑफिसर के सामने पेश करने के लिए ए ने पकड़ लिया जेड को। लास्ट सेंटेंस सेज ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो यहाँ पर ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। ए ने कोई भी ऑफेंस क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारा जो सेक्शन 79 बोलता है that if a person is mistaken of fact, rather he is not mistaken of law in good faith, believes himself to be justified by law, और वो believe करता है कि that he is justified by law, then he has done no offense. इसीलिए यहाँ पर A has not committed an offense because he believes that he is doing right thing. तो इसीलिए वो वहाँ पर जस्टिफाइड था उस चीज को करने के लिए, इसीलिए उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट सेज दो इट मे टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, और बाद में जाके पता चला ए को कि जेड तो एक्चुअली में सेल्फ डिफेंस कर रहा था, लेकिन ए ने उसको क्या सोच के पकड़ा था कि जेड जो है वो मर्डर कर रहा है। तो ए का जो जस्टिफिकेशन था दैट वाज हिज सब्जेक्टिव थिंग, लेकिन उस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर वो गुड फेथ में काम कर रहा है। तो अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है तो उसने गलत भी फैक्ट को समझा, फिर भी उस चीज के लिए उसको माफ कर दिया जाता है। तो ये है इसका मतलब। अब समझ में आ रहा था? हाँ जी सर। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या बोलता है? एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अब ये बताता है कि अगर आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस लॉफुल एक्ट को करने के दौरान, तो फिर क्या हो सकता है? इट सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। कुछ भी ऑफेंस नहीं है इफ इट इज डन बाय एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून, अगर वो एक्सीडेंट से हुआ है या मिसफॉर्च्यून से हुआ है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून। Can anyone tell me what is the difference between an accident and misfortune? क्या कोई बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है?
Yes, please. Anyone want to try? What is the difference between accident and misfortune? Okay, so let me tell you that accident और misfortune में बहुत छोटा सा अंतर होता है. जब एक्सीडेंट होता है तब, जैसे रोहित ने स्टार्टिंग में एक सिचुएशन दिया था कि उस बंदे का जो ब्रेक फेल हो गया था और वो उसके पास ऑप्शन था कि बहुत या तो वो सीधा चलता जाए या फिर साइड वॉक में लेबर जो है उसके ऊपर वो चढ़ा कर ले जाए. तो वहां पर वो जो हुआ था वो एक्सीडेंट था या मिसफॉर्च्यून था? रोहित, डू यू वांट टू ट्राई? क्या वो एक्सीडेंट था या मिसफॉर्च्यून था? सर एक्सीडेंट होगा. व्हाई? बिकॉज जैसे आपने बताया फिर बाद में कि चाहता तो वो की निकाल के गाड़ी को रोक भी सकता था या समथिंग लाइक दिस. नहीं, या शुरू आप में मैं वो चेक मैं कर वो लो. नहीं बोल रहा हूँ कि वो क्या चाहता था. आपने जो सिचुएशन दिया था उस केस में वो एक्सीडेंट होता या मिसफॉर्च्यून होता? सर एक क्वेश्चन बिफोर दैट. सो अभी हम एक्सीडेंट में ऐसा होगा क्या कि एक्सीडेंट में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल की, जैसे अगर इट इज पॉसिबल टू अवॉइड इट, बट मिसफॉर्चून में ऐसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कुछ होगा? yes, actually that is the point. When there is accident, then there would have been a chance ओके. to avert that thing. So there is some mental element involved in that. कि आपने देखा होगा that जब आप डेंजरस वेज में गाड़ी चलाते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि थोड़ी सी गलती हुई और एक्सीडेंट हो जाए. ये होता है. लेकिन मिसफॉर्च्यून क्या होता है? यू हैव नो आइडिया ऑफ इट एट ऑल. जैसे आप राह चल रहे हैं, अचानक से आपकी गाड़ी के ऊपर एक पेड़ गिर गया. क्या इस चीज का आप अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते. सो दैट इज मिसफॉर्च्यून. सो द इन एक्सीडेंट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ नॉलेज that accident may happen, but in misfortune that is totally out of your control. You do not have any idea about it. So that is why these two words have been given. Otherwise एक ही word use करता तो Sure. काम चल जाता. Yes. सर तो ये वाली जो सिचुएशन आपने दी थी, इफ अ ड्राइवर्स ब्रेक्स हैव फेल्ड, so either he can continue on the road or he can go on the footpath where the laborers are there. Yes. तो Yes. Yes. अगर वो उधर फुटपाथ पे लेके चला जाता है तो विल दैट बी एन एक्सीडेंट और विल दैट बी मिसफॉर्च्यून? बिकॉज उसको Now नॉलेज तो again, है कि हाँ ऐसा. उससे knowledge है, but there is something called negligence. There is something called rashness. Okay. So यहाँ पर क्या है कि it depends upon the facts and circumstances. रोहित को मैंने बताया कि facts and circumstances क्या थे उसके पास उस समय. सर जैसे वो गाड़ी चला रहे हैं और उसको पता है कि ब्रेक फेल है और हाईवे पे है, तो उसको वो मतलब सेल्फ मतलब यहाँ पे भी वो खुद को मतलब वो डिफेंड ही कर रहा है कि मतलब मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं कहीं गाड़ी ना किसी ट्रक के अंदर ठोक दूं मतलब हाईवे पे. तो वो मतलब इतने टाइम में ट्राई करता है कि मैं फुटपाथ पे ही कर लेता हूँ, एंड वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली किन लोगों की डेथ हो जाती है. तो ये सिर्फ नेग्लिजेंस अब मतलब ये मिसफॉर्च्यून नहीं होगा लाइक मोर देन इट बीइंग एन एक्सीडेंट? now again I said that ये इस मान लीजिए ये केस कोर्ट में जाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द जज कि वो किस तरीके से सोचता है. फैक्ट्स उसके सामने रहेंगे. हो सकता है कि वो सोचे कि इसके पास तो मौका था लेकिन फिर भी इसने जानबूझकर फुटपाथ पे चढ़ाने का सोचा. तो ये फैक्ट्स पे डिपेंड करता है. अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि वहां पर जब ब्रेक फेल हुआ, घर से जब वो निकला था तब उसे पता था कि ब्रेक फेल नहीं है, और घर से जब वो निकला था तब उसे नहीं पता था कि ब्रेक फेल है या नहीं है. ये दो सिचुएशन है. ये फैक्ट है और ये फैक्ट डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा. तो मान लीजिए हम पहला सिचुएशन लेते हैं. When he was going, he moved from his home knowingly that the brakes are in good condition. It is in the workable condition. जब वो घर से निकला ये देखकर कि ब्रेक सही कंडीशन में काम कर रहा है, वहां पर वो बाद में जाके ब्रेक फेल हुआ. तो जब बाद में जाके ब्रेक फेल हुआ तब उसके पास कुछ ऑलरेडी की स्पीड पे पहुंच चुकी थी. अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं. जब उसे घर
घर से ही नहीं पता था कि ब्रेक फेल हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो वो जब उस वक्त निकला, दैट वाज हिज नेग्लिजेंस, क्योंकि गाड़ी जब घर से लेकर निकलते हैं तो पता करके चलना चाहिए कि गाड़ी जो है वो वर्केबल कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, तो अगर इस केस में वो एक्सीडेंट करता तो वो सेक्शन 304A में आ जाता, क्योंकि देयर वाज नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। लेकिन अब हम पहले सिचुएशन में आते हैं कि बीच में जाके ब्रेक फेल हुआ। बीच में जाके जब ब्रेक फेल हुआ तो उसने उस वक्त क्या किया? उसने उस वक्त कुछ ऐसा किया होगा ना कि जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो स्पीड कम हो जाए, या फिर गाड़ी का जो है वो दिशा जो है वो ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर कि कम से कम हानि हो सके, है ना। तो वहां पर उस चीज को देखा जाएगा। दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ फैक्ट, ये सारे फैक्ट्स हैं। तो हम सिर्फ इस सिचुएशन से हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज द फैक्ट्स आर नॉट क्लियर। जब आप कंटायर फैक्ट सामने रखेंगे तभी आप बता सकते हैं कि वहां पर उसने जो किया दैट वाज नेग्लिजेंस और दैट वाज मिसफॉर्च्यून और एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आया समझ में क्यों? ठीक है, जब हम एविडेंस लॉ पढ़ेंगे ना नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, देन इट वुड बिकम मोर क्लियर दैट क्या क्या चीजें होती हैं जो कि कोर्ट देखती है किसी चीज को, किसी चीज का जजमेंट देने में। सो अब हम इसका सेक्शन 80 को देखते हैं। इट सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। वो कुछ भी ऑफेंस नहीं है व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। एंड नाउ सी द वर्ड दैट इज यूज्ड हियर इज एंड, इट इज नॉट और, सो प्लीज नोट दैट। एंड without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act। अगर आप क्रिमिनल इंटेंशन के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको नॉलेज भी है कि आप कुछ क्रिमिनल इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे हैं, और आप कुछ लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसके दौरान कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून हो जाता है और आपने प्रॉपर केयर और कॉशन लिया है, जो उसका लास्ट पार्ट बोलता है knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। so सब कुछ lawful है, lawful act है, lawful manner में किया गया है और lawful means से किया गया है। अगर एक अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर से, जैसे मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर है, एनकाउंटर्स होते रहते हैं आज के दिन में, एक पुलिस ऑफिसर जो है वो एनकाउंटर करता है। आप सभी ने वो मूवी देखी होगी ना जिसमें कि गलत नाम की वजह से, अक्षय कुमार की जो मूवी है जिसमें गलत नाम की वजह से उस बंदे को मार देती है, और फिर बाद में जाके पता चलता है कि जो एक्चुअल क्रिमिनल था वो तो भगा दिया गया था पहले ही, और उसी से मिलते जुलते नाम के इंसान को पकड़ लिया गया था। जॉली LLB 2, आपने अगर वो मूवी देखी होगी, आई होप यू ऑल माइट हैव सीन दिस मूवी। यस सर, यस सर। हैव यू सीन दिस? यस, उसमें क्या था, उसने okay, so what happened in that movie, that in the beginning only you should see that movie, कि उस मूवी में that police officer was, उसको करना ये चाहिए था कि सही आदमी को पकड़े रखना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे के लिए क्या किया, that he used unlawful means, और उसने जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई वो भी अनलॉफुल था। उसने अपने रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाई थी, किसी और के रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। सो दैट वाज अनलॉफुल। सो इसीलिए वहां पर वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून नहीं था। जो कांस्टेबल को गोली मारी थी दैट वाज नॉट एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। उसने तो ये दिखाने के लिए गोली चलाई थी ना कांस्टेबल पे, दैट वाज अ मिसफॉर्च्यून और एन एक्सीडेंट, कि जो आदमी था वो भागने लगा, इसीलिए उस हड़बड़ी में उसने गोली चला दी और कांस्टेबल को लग गया। But that was not an accident or misfortune. Why? Because that was not lawful। और इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है that is and, it is not or। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है that it is not or, rather it is and। So अगर कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून हो जाता है और वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ नहीं किया गया है, क्रिमिनल नॉलेज के साथ नहीं किया गया है, and that act is completely lawful, और लॉफुल तरीके से भी किया गया है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ये दो सेक्शंस मेरा पढ़ाने का आपका यही मतलब था। ये सेक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, लेकिन इस सेक्शन से आपके मन में जो डाउट्स होंगे ना, छोटे छोटे डाउट्स, वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जनरली 299 और 300 को पढ़ते समय बहुत डाउट आते हैं जो कि इन दो सेक्शन से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए मैंने ये दो सेक्शन पढ़ाए हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 300 पे। आप लोग जल्दी से सेक्शन 300 पे आ जाइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है दोनों सेक्शन में, 79 और 80 में?
No, Yes? sir. Okay. So now let us come to section 300. अच्छा, सेक्शन 300 हेडिंग सेज मर्डर. मर्डर का हिंदी अनुवाद होता है हत्या, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड का हिंदी अनुवाद होता है आपराधिक मानव वध. ये हत्या नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने पहले ही बात किया था कि जो इंटेंसिटी होती है इंटेंशन की, दैट इज मोर इन मर्डर रादर लेस इन कल्पेबल होमिसाइड, इसीलिए उसको हत्या नहीं बोलते हैं. नाउ मर्डर सेज एक्सेप्ट इन द केसेस हेयरिन आफ्टर एक्सेप्टेड. इसमें जिस मतलब इस सेक्शन में जितने भी केसेस दिए हुए हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ. कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा इफ, अगर, अब ये वर्ड्स देखिए, इफ, बट, एंड, इज, द, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. So culpable homicide is murder if the act by which the death is caused. अब यहाँ देखिए, जब हम लोग 299 पढ़ रहे थे, आप देखिए यहाँ पर डेथ के पहले कहीं पर भी द वर्ड का यूज नहीं हुआ है. जस्ट गो थ्रू सेक्शन 299, कहीं पर भी नहीं यूज हुआ है. So this is one of the major differences between section 299(1) and 300A, which is firstly. So the death means that it was so intended that वो मर्डर हो गया, इतना वो इंटेंडेड था कि वो मर्डर में आ गया. तो इंटेंशन बहुत ज्यादा हाई थी उस डेथ को लाने की, इसीलिए द डेथ का यूज किया गया है. सो विच by which the death is caused is done with the intention of causing death. इसके अलावा 299 का A और 300 का फर्स्टली में कोई अंतर नहीं है. 299 का A भी यही बोलता है doing an act with the intention of causing death, और 300 का A भी बोलता है act by which the death is caused is done with the intention of causing death. कोई अंतर नहीं है. ठीक है. अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक मतलब जो कि कन्वेंशन है, जजेस लोग फॉलो करते हैं हर केस में. कोई भी केस 300 में तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो 299 का कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर देता. यानी कि 299 में 3 कंडीशंस हैं, उन 3 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो 300 आएगा ही नहीं, क्योंकि 300 आने से पहले 299 फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो वो 300 में नहीं आएगा. Are you able to understand what I am saying? So 300 जो है वो इंटेंशन इतना ज्यादा हाई हो गया है that the use of the word the death makes it clear that it is highly intended to bring upon death. और इसीलिए जब हमारा 299 का फर्स्टली, मान लीजिए कि कोई केस आता है जिसमें कि 299 का फर्स्टली यानी कि A, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये फुलफिल हो गया क्राइटेरिया, तो दैट इज ऑब्वियसली कि वो 300 के फर्स्टली में आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज 299 का फर्स्टली और 300 का A में ज्यादा का अंतर नहीं है. इंटेंशन जो है उसमें भी है, इंटेंशन जो है इसमें भी है. सो इट इज प्रिज्यूम्ड रादर कि 299 का A और 300 का फर्स्टली सेम है. ठीक है. So automatically culpable homicide with an intention of causing death will come under murder firstly, causing the death with the intention of causing death. ठीक है. Secondly में हम आते हैं murder का. If it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. यहाँ भी देखिए वर्ड्स, डेथ के पहले में द डेथ लिखा है, और इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी. ये जो सेक्शन है ये 299 का बी से मैच करता है, क्योंकि 299 का बी भी क्या बात करता है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. अंतर क्या है कि यहाँ पर लाइकली वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन जब हम सेकेंडली देखते हैं यहाँ पर लाइकली के साथ साथ कुछ और वर्ड्स का भी यूज हुआ है, जैसे कि ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली.
It is not only likely, rather offender knows to be likely. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that the offender already knows कि जो मैं कर रहा हूं उससे डेथ होगा, ठीक है? तो इसीलिए if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. So वो जो bodily injury देता है उसे पता है कि जिसे भी मैं bodily injury दे रहा हूं उसे डेथ आएगा, क्योंकि वो जिसे bodily injury दे रहा है वो उसके बारे में जानता है. He knows about that person कि इसको अगर मैं बॉडीली इंजरी दिया तो इसका डेथ होगा. यहाँ पर दो सिचुएशन आता है. पहला सिचुएशन ये कि वो उस मान लीजिए जिसने बॉडीली इंजरी दिया वो जिसको बॉडीली इंजरी देता है उसके बारे में जानता है. कैसे जानता है? मान लीजिए दोनों दोस्त हैं तो उसे पता है उसके बारे में सारी चीजें. दूसरा सिचुएशन ये आता है कि जिसे भी बॉडीली इंजरी दे रहा है वो दोनों दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको जानता है कि ये आदमी जो है अक्सर ये काम किया करता है. मान लीजिए जहां भी उसका मर्डर किया है वहां पर वो जनरली आते जाते रहता है, दोस्त नहीं है, आते जाते रहता है. सो नाउ दोस्त इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? बॉडीली इंजरी जो है वहां फैक्ट काम आएगा. कोर्ट जो है फैक्ट देखता है कि मान लीजिए कि बॉडीली इंजरी दिया है, बॉडीली इंजरी वाइटल ऑर्गन्स पर दिया है, बॉडीली इंजरी किसी वुंड पर दिया है, बॉडीली इंजरी इस तरीके का दिया है कि डेथ होगा, जैसे कि किसी के गले में चाकू घोंप दिया. इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट डेथ होगा ही होगा, ऐसा बॉडीली इंजरी. लेकिन मान लीजिए कि किसी एक आदमी को 5 लोगों ने घेर कर डंडे से मारा. अब जब डंडे से मारते हैं तो वहां पर डेथ एकदम से पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा. दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्सन हु इज गेटिंग बीटन. अगर वो ताकतवर है तो डेथ नहीं होने का चांसेस है, लेकिन अगर वो वीक है, 60 प्लस एक आदमी है, तो वहां पर क्या होगा? इट इज पॉसिबल दैट ही विल डाई, लेकिन दैट इज अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पर फैक्ट्स देखते हैं हम लोग कि कितनी बार लाठी से मारा, कहाँ कहाँ चोट लगा, और यदि वो आदमी मारते मारते गिर गया, मतलब उसको चोट लग गया और वो गिर गया और चोट लगने के बाद भी मारा, यानी कि वहां तो क्लियर इंडिकेशन है कि वो मारना ही चाहते थे. क्योंकि किसी को डिफेंसलेस होने के बाद भी अगर आप मार रहे हैं मतलब कि आप उसे मारना ही चाहते हैं. सो दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ये फैक्ट पर डिपेंड करता है. तो हमारा जो सेकेंडली है दैट इज मोर डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट, क्योंकि यहाँ पर वर्ड जो यूज किया गया है दैट इज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज्ड. सो सेकेंडली टॉक्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन. पहले तो इंटेंशन के बारे में बात करता है. दूसरा बात करता है दैट द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली. ऑफेंडर को पता है कि अगर मैं इस तरीके से मारूंगा, इस चीज से मारूंगा, यहाँ पर मारूंगा तो उसे इसका डेथ होगा. अब देखिए मान लीजिए कि इसके लिए एनाटॉमिक पता होने की जरूरत नहीं है. जैसे कि आप बोलिएगा कि उसने जब चाकू मारा तो उसने धड़कन में ही मारा क्योंकि उसे पता था कि धड़कन में चाकू मारने से वो उसकी मौत हो जाती है. अब यहाँ पर कोर्ट बोले कि हाँ भाई तुम्हें एनाटॉमी पता थी तो इसीलिए तुम्हें पता था कि हार्ट कहाँ होता है, इसलिए तुमने वहां चाकू मारा, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ. वहीं दूसरे सिचुएशन में वो आदमी जो है वो हार्ट में ना घुसाकर पेट में चाकू घुसाता है और एक नहीं 10 बार घुसा देता है. तो जज के पास जब जाते हैं तो जज ये बोलता है कि तुम्हें पता नहीं था कि पेट में चाकू घुसाने से वो बच भी सकता है, इसीलिए तुम्हें सजा नहीं दूंगा. तो एनाटॉमी पता होने की जरूरत नहीं है. आपका इंटेंशन मायने रखता है और आपका नॉलेज मायने रखता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, जिस चीज से मार रहे हैं उससे मृत्यु होगी. उस तरीके की बॉडीली इंजरी अगर आप देते हैं तो आपका मतलब 299 से 299B से उठकर 299 सेकेंडली में आ जाता है. सॉरी 300 सेकेंडली में आ जाता है. ठीक है, 300 सेकेंडली और 300 थर्डली में अंतर है, लेकिन इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 299 में वो सेम है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी. 300 का थर्डली भी बॉडीली इंजरी के बारे में बात करता है. वो क्या बोलता है? इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी. अब और देखिए यहाँ पर बॉडीली इंजरी यूज किया है, लेकिन सर बाकी आपको वॉइस कट हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है. ओके सो जस्ट अ मिनट. एम आई ऑडिबल नाउ क्लियरली?
But sir, your voice Yes, is sir. clear. ओके, सो किसी किसी को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं। तो जब भी ऐसा हो तो प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज बता दिया करिए। सो आपने कहाँ तक सुना था कुणाल? सर बॉडीली इंजरी आप बोल रहे थे। हाँ, थर्डली ये बोलता है दैट इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। अब देखिए, इससे पहले हमने जहां भी बॉडीली इंजरी वर्ड देखा है उसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या आप देख सकते हैं? व्हाट इज दैट वर्ड? कैन यू एनीवन टेल मी? Yes, Ananya, can you please tell me what? Yes, Tenzing, please. Can anyone tell me what is the word before bodily injury before this section? Okay, so bodily injury से पहले such word का यूज हुआ है इससे पहले, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। That is definite, क्योंकि जो ड्राफ्टर था उसको कुछ और मीनिंग करना था, इसीलिए उसने such word का यूज नहीं किया है। If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and, अब देखिए यहाँ वर्ड जो है वो and है, यानी यहाँ पर दो कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, इट इज नॉट और। एंड वर्ड का यूज हुआ है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है, पहला कंडीशन तो ये हो गया कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, देयर हैज टू बी एन इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी। द सेकंड पार्ट सेज द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। जो भी बॉडीली इंजरी दिया गया है वो सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, दैट इज सफिशिएंट। अब यहां देखिए क्या चीज ध्यान देने वाली है। देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड सब्जेक्टिविटी एंड देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। जब हम सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं देन दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। उसने क्या सोच कर वो किया, वो उसका सोचना था, दूसरा कोई कुछ और सोच। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं वहां पे हर आदमी एक ही चीज सोच रहा होता है, और रैदर हमको किसी और के सोचने से कोई मतलब ही नहीं है। एक प्रूडेंट आदमी, एक समझदार आदमी उस सिचुएशन में क्या सोचता, हमें उससे मतलब है बस, या फिर फैक्ट्स क्या क्या है हमें उससे मतलब होता है। तो सब्जेक्टिविटी डिफरेंट होता है सबके लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज सेम फॉर एवरीवन। सो ऑब्जेक्टिविटी सेम तीन तरीके से हो सकता है, या तो सब एक ही चीज सोच रहे हैं, दूसरा चीज कि किस तीनों के सोचने से कोई मतलब ही नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, हम अपना ही लेकर चलेंगे, जजमेंट जो देंगे हम अपना क्या सोचते हैं वो लेकर चलेंगे। तीसरा चीज किसी भी प्रोफेशनल का जो राय है वो लेते हैं कि प्रोफेशनल क्या सोचता, तो वहां पे वो राय ऑब्जेक्टिविटी बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा कंडीशन है दिस इज द ऑब्जेक्टिव कंडीशन। पहला जो था इंटेंशन इज सब्जेक्टिव, उसका पर्सनल इंटेंशन था कि वो क्या सोच के मर्डर किया। लेकिन यहाँ जो सेकंड पार्ट है इट सेज दैट the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. It was sufficient to cause death. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि it is sufficient or not? Who will decide it? इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट करते हैं हम लोग। What we do, ऑब्जेक्टिव टेस्ट करने के लिए क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता तो ये है कि हम जाएं डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर देगा हम उसे मान लेंगे, ये हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्योंकि डॉक्टर को पता है कि कैसे चोट किस कारण से हुए हैं और उस चोट की वजह से डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है वो डॉक्टर बता सकता है। दैट इज व्हाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा एक सेक्शन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बेस्ड है। जो थर्डली है which is inflicted is sufficient in the ordinary course of nature, the word sufficient is used, the word necessary is not used. sufficient word का मतलब होता है कि काफी, और नेसेसरी वर्ड का मतलब होता है कि जरूरी। सो यहाँ पर काफी वर्ड का यूज किया गया है। सफिशिएंट, वो अगर सफिशिएंट है यानी कि हो मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मौत होने का, तो वो मतलब सेक्शन 300 थर्डली के अंदर आ जाएगा। तो थर्डली में दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। पहला जो कंडीशन है दैट इज इंटेंशन विच इज सब्जेक्टिव, और जो दूसरा कंडीशन है दैट इज ऑब्जेक्टिव कंडीशन, दैट इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो ये हमारा है थर्डली। फोर्थली हमारा है इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज
अब यहाँ देखिए, इससे पहले तक हम लोग इंटेंशन के बारे में बात कर रहे थे, फोर्थली में हम इंटेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जब हम इंटेंशन के बारे में बात करते हैं, अगेन आई अर्लियर सेड दैट इंटेंशन जो होता है उसमें दो चीजें होती हैं, desire of consequences, foreseeability of consequences. But when there is knowledge, there is only one element, that is foreseeability of consequences. यानी कि आप कितना, आपने जो सोचा उसे आप देख रहे हैं, वो foreseeability होता है। आप जो चाहते हैं वो foreseeability नहीं है, आप जो देख रहे हैं या अपनी सोच के हिसाब से देख सकते हैं, that is foreseeability. So ये fourthly talks about knowledge. If the person committing the act knows that it is so imminently dangerous that it must, in all probabilities, the word that is used here is in all probabilities. Why? Because this section is applicable when it is certain. All probabilities का मतलब होता है कि दूसरा कुछ और होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ यही चीज होना चाहिए. It is certain that in all probabilities cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse. इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम यहीं तक देखते हैं, cause death तक, and जो है उसको भी छोड़ देते हैं. यहाँ तक में ये बोल रहा है that the person committing the crime, he knows that it is so imminently dangerous. What is so eminently dangerous? The act which he is doing, that is so eminently dangerous कि उस एक्ट को करने से in all probabilities death होगा, ये कह रहा है. So imminently dangerous word का समझना बहुत जरूरी है कि imminently dangerous, is it subjective or is it objective? क्योंकि अगर वो सब्जेक्टिव है यानी इंटेंशन आ गया, अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो सिर्फ नॉलेज रहेगा. तो यहाँ पर नॉलेज तो पहले लिख ही दिया है, लेकिन अगर इमिनेंटली डेंजरस समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटेंशन या फिर समथिंग विच इज सब्जेक्टिव, तो इंटेंशन आ जाएगा. इसीलिए हम इमिनेंटली डेंजरस के ऊपर बात करेंगे. इमिनेंटली वर्ड का मतलब होता है कि मतलब प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये सो डेंजरस है. इमिनेंटली डेंजरस, इट इज सो डेंजरस, डेंजरस टू द हाईएस्ट एक्सटेंट, इतना हाई ग्रेविटी है उसका डेंजरस होने का दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज डेथ कैन कम. ठीक है. सो इमिनेंटली डेंजरस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल. भीड़ है, भीड़ में मैं 140 किलोमीटर स्पीड से गाड़ी लेकर आ रहा हूं. इज इट इमिनेंटली डेंजरस और नॉट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Why? Why is it imminently dangerous? What made you think that it is imminently dangerous? So because of the foresight, like उसको पता है, like if somebody who's driving at 140 kilometers per hour, you know that you have exceeded the speed limit and you have gone way beyond the speed limit, and any little object which comes on the road, like the car can topple. So there is foresight, like तुम्हें पता है कि कहीं पे भी कुछ होगा तो एकदम गाड़ी घूम जाएगी. You are partly right, कुणाल. आप यहाँ पर नॉलेज, यहाँ जो वर्ड नोज यूज किया है आप उससे कनेक्ट करके देख रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो नॉलेज को अभी साइड कर दिया हूँ. I am just talking about imminently dangerous. So when it is imminently dangerous, तो वहां पर सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं वो डेंजरस होना चाहिए. That should be so dangerous कि वो जितने भी लोग हैं सभी के लिए वो उतना ही imminently dangerous होना चाहिए. It is not only dangerous for that person who is committing it, rather that thing should be dangerous in itself. ठीक है. Dangerous per se. Per se is a Latin word which means in itself. So dangerous per se होना चाहिए. It's in itself वो इतना dangerous होना चाहिए कि वो सभी के लिए उतना ही dangerous appear हो और actually में भी हो. So जब हम उस चीज को knows word के साथ यूज कर देते हैं, मतलब कि अब हम बोलेंगे कि वो जो चला रहा है वो जानता है कि वो डेंजरस, इमिनेंटली डेंजरस काम कर रहा है, तब डेफिनेटली ही इज नोइंग इट एंड डेफिनेटली ही शुड बी पनिश्ड फॉर दैट. अगर आप किसी को नोइंगली कुछ भी कर देंगे और फिर आपको कानून छोड़ देगा, तो ऐसे किसी को लाइसेंस नहीं ना मिला हुआ है किसी को भी हार्म करने का. ठीक है. बहुत सारे जजमेंट्स में ये सेंटेंसेस आते रहते हैं दैट एनीबॉडी हैज नॉट गॉट द लाइसेंस टू टेक एनीबॉडीज लाइफ.
तो ये इसी से आया है कि इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस कि किसी को भी लाइसेंस नहीं है किसी का भी लाइफ लेने का. So now we see that this imminently dangerous is not subjective, rather it is objective. ये हर किसी की नजर में imminently dangerous होना चाहिए. It should be imminently dangerous in itself. ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि भीड़ में आप कार लेकर जा रहे हैं 140 तो it is imminently dangerous. Second example I would like to give, आपका केस मटेरियल में भी वो केस है, धीराजिया का केस है. उस केस में क्या हुआ कि एक वाइफ थी और उसका हस्बैंड था. सो व्हाट हैपेंड दैट दोनों में लड़ाई होती रहती थी, अक्सर बहुत झगड़ा होते रहता था. तो एक बार क्या हुआ कि बहुत खतरनाक वाला झगड़ा हो गया दोनों के बीच में. तो वो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर घर से भाग गई. अब उसका हस्बैंड उसके पीछे पीछे भागने लगा. उसकी वाइफ हमेशा बोलती थी कि मुझे मैके जाना है, उसका हस्बैंड उसको नहीं जाने देता था और घर में रख के पीटता था, बुरा व्यवहार करता था. तो एक दिन वो रात में घर से भाग गई. उसके हस्बैंड को पता चल गया कि वो भाग रही है. वो उसके पीछे दौड़ा. When he was running behind her, वो अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी. So when she was running, वो दौड़ते दौड़ते उसके सामने एक कुआं आया और वो उसमें कूद गई. जब वो कुएं में कूद गई तो वो तो जिंदा बच गई, लेकिन जो बच्चा था वो मर गया. तो जब कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि क्या उस औरत ने, क्योंकि हस्बैंड जो था उसने औरत के ऊपर केस डाला कि इसने मेरे बच्चे का जान ले लिया, हत्या कर दिया. तो जब ये केस कोर्ट में गया तो जज ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो औरत थी जब वो भाग रही थी, इससे पहले का सिचुएशन क्या था. इससे पहले का ये सिचुएशन था कि औरत के भागने का रीजन क्या था. सबसे पहले तो ये चीज कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, व्हाई शी वाज रनिंग अवे फ्रॉम हिम. दूसरा ये था कि व्हेन शी वाज रनिंग व्हाट वाज द मेंटल स्टेट ऑफ दैट वुमन. मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, आपको याद होगा, दैट मेंस रिया कॉन्स्टिट्यूट थ्री थिंग्स. देयर शुड बी नो फियर, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ माइंड, देयर शुड बी इंटेलिजेंस एंड देयर शुड बी इंटेंट. तो यहाँ पर व्हेन दिस वुमन वाज रनिंग इन फियर ऑफ हर हस्बैंड, जब वो भाग रही थी, सो क्या वो एक सेन आदमी के लेवल का सोच सकती थी? विल शी बी एबल टू थिंक इन द मैनर हाउ अ सेन एंड प्रूडेंट पर्सन कुड हैव थॉट? वो डर से भाग रही थी, उसके मन में डर था और उसी डर में वो उस कुएं में कूद भी गई. तो उसके मन में क्योंकि डर था, इसीलिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट बिकॉज देयर वाज फियर इन हर माइंड बिकॉज ऑफ her husband, that is why it was not possible for her to think. And since it was not possible for her to think like a prudent person, therefore she is not guilty of murder. ठीक है. मैंने जो एक पार्ट इस फोर्थली का छोड़ा है ये उसमें आ जाता है. तो अब हम देखते हैं कि फोर्थली में हमने क्या छोड़ा था. लास्ट में दिया है and commits such act without any excuse. Just follow the fourthly of 300, and commits such act without any excuse. The last line, the last sentence, and commits such act without any excuse for the incurring of risk of causing death to such injury as aforesaid. इस सेंटेंस का यही मतलब है that वहां पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. मतलब जो पहले बात किया दैट थिंग शुड बी सो इमिनेंटली डेंजरस, और फिर बात कर रहा है कि कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. जंपिंग इन द वेल इज सो इमिनेंटली डेंजरस, बट यहां पर दैट वुमन हैड एन एक्सक्यूज. व्हाट वाज दैट एक्सक्यूज? इट वाज द फियर बिकॉज ऑफ विच शी जंप्ड. दिस वाज द एक्सक्यूज, एंड दिस एक्सक्यूज वाज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट बिकॉज when a person is in fear, he or she is not able to think like a prudent person. So that is why this thought was accepted by the court, क्योंकि वो fear में थी. ठीक है. So when she was in fear, this acted as an excuse for her to commit such an imminent dangerous act which she knows that could have been taken death. So इसी वजह से धीराजिया का जो केस था उसमें उसको कोई सजा नहीं मिलती. लेकिन अगर हम 299 में लाते हैं
तो 299 का जो थर्डली है, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, क्या इसके अंडर में ये आ जाएगा? यहाँ पर तो इमिनेंटली डेंजरस वगैरह के बारे में बात नहीं की गई है, ना ही एक्सक्यूज के बारे में बात की गई है. सो विल दिस एक्शन और विल दिस केस कम अंडर 299 thirdly, that he was having the knowledge that is likely by such act? क्या इसके अंदर आएगा ये? Anyone please? नहीं सर, नॉलेज में नहीं आएगा. नॉलेज में क्यों नहीं आएगा? So because you said that when a person is there, like the judgment also said कि because there was a fear, so one could not have like seen it कि ऐसा वहां तक बात जा सकती है कि डेथ हो जाएगी. Yes. So there was no foreseeability, because when in fear you cannot foresee कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो. You cannot foresee that. So ये knowledge में भी नहीं आएगा. So ये 299 thirdly में भी नहीं आएगा. तो फिर ये किस में आएगा? डेथ तो करवा दिया उसने. 79 और 80. 79 और 80 में अगर आप देखिए, दिस डिपेंड्स ऑन द एडवोकेसी स्किल्स. इसीलिए बोलते हैं कि जो अच्छे वकील होते हैं उनको ज्यादा पेमेंट इसीलिए करना पड़ता है, बिकॉज वो आपके केस को ना जिस सेक्शन में आपको सजा मिलनी चाहिए उससे उठाकर किसी दूसरे सेक्शन में ले जाके रख देते हैं. कोर्ट को इस तरीके से फैक्ट्स को कन्विंस करते हैं कि दूसरे सेक्शन में वो जाके फिट हो जाता है. सो यहाँ पर हम लोग जो देखें रैशनेस एंड नेग्लिजेंस, वो भी एक सेक्शन है, वहां पर भी इसको लाया जा सकता है. और जो हमने बात किया एक्सीडेंट, तो वहां पर वो जो 79 और 80 की जो बात करते हैं, वहां पर नॉलेज की कहीं बात नहीं की गई है ना. लेकिन वहां पर इंटेंशन होता है. जो हम लोग 79 और 80 के बारे में बात करते हैं, दैट पर्सन इज हैविंग सम इंटेंशन, सम पार्ट ऑफ इंटेंशन इफ इट इज एक्सीडेंट. बट जब वो हम मिसफॉर्चून की बात करते हैं, तो मिसफॉर्चून जो है वो तो एक्सीडेंट नहीं है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. सो इट डिपेंड्स ऑन द एडवोकेसी स्किल्स ऑफ योरसेल्फ कि आप उसको किस में लाकर रख देते हैं. लेकिन हम जो अभी यहाँ देख रहे हैं सेक्शन 300 का फोर्थली, इसमें तो वो नहीं आएगा, क्योंकि देयर वाज एन एक्सक्यूज. आप एक और केस पढ़ेंगे अपने केस मटेरियल में, जिसमें कि एक औरत रहती है, वो अपने 3 बच्चों को लेकर कूद जाती है, and in that case she was held liable for the offense, because in that case there was no excuse. Again I'm telling you, the first thing which I So told what you, is the name of the case? केस का नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता. केस का नाम जो है मैं आपको मैसेज कर दूंगा. आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट केस, बट आई विल मैसेज इट टू यू. ओके. सो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, आई वाज टेलिंग यू दैट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी एक्ट होता है, देयर शुड बी डायरेक्शन एक्ट टू द कॉन्सिक्वेंसेस. इट मीन्स कॉज, इट मीन्स causa causans. Causa causans means cause and effect, cause of the cause. It means the cause and effect relationship should be there. यहाँ पर वो दौड़ा रहा था और उसी दौड़ाने में वो कूद गई, इसीलिए यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप था. लेकिन जो मैंने बाद में जो केस बताया कि वो 3 बच्चों को लेकर कूद गई, वहां पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर सिचुएशन ये था दैट वुमन वाज लिविंग विथ हर हस्बैंड, एंड उसकी जो क्या उसको बोलते हैं, उसके हस्बैंड की बहन थी, तीनों साथ रह रहे थे. अक्सर खिटपिट होते रहती थी बहन में और उसके वाइफ में. तो अक्सर खिटपिट में वो लोग कुछ भी एक दूसरे को बोल देते थे, तू मर जा, तू तो ये बेकार, तू वो, तू ये, मतलब एक दूसरे को खूब बोलते रहते थे. एक दिन क्या हुआ कि खूब लड़ाई हुई इन दोनों में, और वो औरत खुद से, मतलब जब लड़ाई रही थी उस वक्त नहीं, उसके थोड़े समय बाद वो जाकर अपने बच्चों के साथ कूद गई कुआं में. तो व्हेन शी जम्प्ड इनटू द वेल, यहाँ पर देयर वाज अ गैप ऑफ टाइम. दिस गैप ऑफ टाइम इज अनजस्टिफाइड. तो ये जो गैप ऑफ टाइम था ये अनजस्टिफाइड था. क्यों? क्योंकि ये जो गैप ऑफ टाइम था ये कूल डाउन पीरियड की तरह काम किया. दिस गैप ऑफ टाइम एक्टेड एज अ कूल डाउन पीरियड. इसमें वो कूल डाउन हो सकती थी, लेकिन उसीलिए वो कूल डाउन नहीं हुई.
इसीलिए उसको एक्सक्यूज के अंडर नहीं रखा गया. सो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी देयर. और अगर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो 299 में तो आएगा ही नहीं पहली बात. तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी देयर. ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा तो हम इंटेंशन और नॉलेज के बारे में बात ही नहीं करेंगे. ओके, सो with this we have completed section 300, the main part of that. However, the exceptions are still left. So I think that it is already time, and we will do the later part, the illustrations, the exceptions tomorrow, because इतना आपके लिए आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है. आज जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि you will of course you all are at home only, so 299 और 300 के बीच में you will have to find out that where there is a difference. और मैंने आपको बताया कि 299 लगेगा तभी 300 पे हम आएंगे. So it is sine qua non. Sine qua non is a Latin phrase which means prerequisite. It is the pre-requirement that 299 should be applicable, then only we can come to 300. These are the various Latin words that I will be using between the classes so that your legal knowledge about legal maxims that improves. Okay, in judgments you will always find these words. तो इसीलिए ये आप अपने आप को एक्वेंट करवा लीजिए इन वर्ड से. Sine qua non, SINEQUANON, these are the three words which means prerequisite, pre-requirement. Now आपका काम ये है कि आप 299 और 300 के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको आप समझने की कोशिश करेंगे. और अगर आपको टाइम मिले तो आप प्लीज इलस्ट्रेशंस पढ़िए एक बार 300 का, बिकॉज इलस्ट्रेशंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगा 300 का फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली और फोर्थली. आपके जो केस मटेरियल में कुछ केसेस हैं, विरसा सिंह का केस हो गया, गप्पू यादव का केस हो गया, और भी बहुत सारी केसेस हैं. तो वो सारी केसेस जो हैं वो हम जब ये सेक्शन पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी clear that how these sections are getting applied. हम क्या क्या एलिमेंट्स देख रहे हैं इन सेक्शंस में. Okay, so if you have any doubt regarding till how much we studied today, please ask me. Yes, please. Anyone has any doubt, please ask me. Okay, so I would also like you to know one thing, that on the request of you guys only, that I thought that I should also teach you jurisprudence. So introduction, what is jurisprudence actually, so that you will have an idea. Jurisprudence is actually a subject which deals about the various legal philosophies over which we are studying all these laws, the acts which we are studying. जो भी philosophy होती है वो हम लोग jurisprudence में पढ़ते हैं. With time जैसे जैसे वो evolve की है हम उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं उसमें. तो लीगल फिलॉसफी इज समथिंग विच इज ऑब्वियसली फिलॉसफी. उसमें आपको थोड़ा सा डेप्थ में सोचना पड़ता है और साथ ही साथ थोड़ा सा हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कि जिस टाइम पर वो चीज़ें सोची गई थी उस टाइम में क्या चल रहा था दुनिया में. सो थोड़ा सा हिस्ट्री और थोड़ा सा फिलॉसफी मिलकर ही आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. सो जूरिस्प्रूडेंस के लिए और भी अगर कोई पढ़ना चाहता हो या फिर जुड़ना चाहता हो मेरे साथ, सो प्लीज कन्वे देम दैट आई एम आल्सो टीचिंग जूरिस्प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है सिलेबस उसका, बट दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग आई विल से, बिकॉज इट इज़ फिलॉसफी, और फिलॉसफी इज़ अ वेरी difficult subject if you are a science background student or arts background student, क्योंकि उसके लिए फिर आपको एक ऑब्जर्वेशन का नेचर होता है. देयर इज अ नेचर कि कोई इंसान ऑब्जर्वेशन करता है, और एक नेचर होता है कि जो मेरे सामने है मैं उसी चीज को पढ़ रहा हूँ. तो वो जो नेचर होता है वो हर किसी के पास नहीं हो पाता है, लेकिन जब हम उसको दिशा देते हैं, व्हेन वी डायरेक्ट दैट पर्सन कि इस दिशा में भी तुम सोच सकते हो, तब वो सोचने लग जाता है. So as a teacher, I would try to give you a direction that you can think in this direction. I will like you to know that I will not do spoon feeding to anybody, because as I told you, IPC ये पूरा नहीं है, फिर हम थोड़ा सा इसका करेंगे जो हमारा सिलेबस है. So इसीलिए आपका जो critical thinking है वो डेवलप होना बहुत जरूरी है. And for that you will have to think on your own, keep on thinking, make situations on your own, and try to find out what can be the probable judgment. Okay. सो जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो आप मेरा मैसेज उनको कन्वे कर सकते हैं. दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी.
Okay, so is there anything else we should talk about, or shall I call it a day? Yes, please. Sir, you can call it a day, sir. Okay. Thank you, everyone. And please come prepared tomorrow for the various illustrations. Okay. Thank you, Thank sir. you, everyone. Thank Good you, night. sir. Good night. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you.